It could be any other angle, does not matter. Let us say 10 degrees port. So when we give 10 degrees port, then the signal from bridge comes to the telemotor receiver, is a electrical signal. And we have a solenoid valve which will be energized. When it energizes, we have that auto pump, pilot pump, छोटा सा pump है इतना सा. That will supply oil and will move this cylinder towards left. When this moves towards left, this linkage will move, this point will move towards left. And this movement from here to here is corresponding to 10 degrees. Had it been 20, it would have moved corresponding to 20. Okay? Therefore, now because of 10, this has moved like this. So this dotted line is the new position of L1 linkage of the hunting gear. This dotted line. Now what happens to L2? L2 is hinged here, so this fellow will turn like this. Yes or no? Yes. That means my new position of L2 is this dotted line, which is up to F. But L3 has not moved so far. L3 को हमने कुछ किया ही नहीं है. Simply because it was fulcrumed here, यहाँ ये hinge point था. This turned like this. Therefore this point will come here, but this point remains here only. F original जहाँ था, वहीं का वहीं. So this is my first action when we give 10 degrees port. L1 and L2 acquire a new position. In this new position, O has moved from O to O dash, है ना? क्योंकि ये पहले यहाँ था, अब ये position है. So this much part it has moved in, and that movement of pump stroke lever puts the pump into corresponding pitch. है ना? Swatch plate उतना ही घूमी है. पूरा 15.5 भी घूमेगी, maybe 5 degree, 10 degree as per pro rata. So because of this now, pump has started delivering. So far it was not delivering. It was running at the whatever is the RPM of the motor, but was not delivering. Now it has started delivering oil. This oil comes here. आगे इसने यहाँ act किया. जब यहाँ act किया, this is the main ram. This moves towards right. Because of this, the tiller will have a angular movement, na, clockwise. So my rudder stalk turns clockwise, and at the base of this we have the rudder. So rudder will also turn clockwise. That means it starts moving towards port. It has started moving. As it starts moving, nothing happens to this point, but what happens to point F? F starts moving towards left. And it will continue to move till it reaches this point. So from this dotted position, rest everything remains same. This starts moving, and when it comes here, O dash has come to O. Original position. F is just a point here. L2 ये वाला जो point है. At this point of जहाँ पे L2 खत्म हो रहा है और इससे L3 लगा हुआ है. ऐसे दो लिंकेज, ये एक लिंकेज है और ये लिंकेज है. तो ये वाला जब लिंकेज ऐसे हो गया था, ठीक है ना, ऐसे हो गया ना. अब इससे पंप स्ट्रोक लीवर चेंज हो गया, ऑयल गया, उसने इसको मूव करना शुरू किया. अब ये L3 रडर स्टॉक घूमा तो ये L3 लिंकेज लेफ्ट को जाने लगा. तो अब ये L3 लिंकेज ऐसे जाने लगेगा क्योंकि ये लेफ्ट को जा रहा है. Till it reaches a position where pump stroke lever comes back to original position. That means new position of L2 linkage is from here like this. ये पॉइंट यही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट जो इधर जा रहा है क्योंकि L3 लिंकेज इधर जा रहा है. ये इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि रडर स्टॉक क्लॉकवाइज घूम रहा है. So from here it turns and comes here. When it reaches here, this point has come back O. Pump stroke lever has started coming out till it reaches this point. So this is the new position of the L2 linkage. Pump stops delivering oil. Pump is still running but not delivering any oil. Rudder has come to 10 degrees port. Pump has stopped delivering oil. So these two lines are blocked now. So oil from this side or this side cannot go anywhere. So rudder will come to 10 degrees and stop. So who has done it? Hunting gear. Hunting gear has been designed in such a fashion that when 10 degrees movement has been achieved, this movement will be so designed that this comes back to original position and pump stops delivering oil. Had I given 20, it would have moved slightly more this side. Now from 10,
if I want to again bring it to midship tempo, then I will be giving opposite movement. तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा midship. When I do midship, this will come here, but this point was here, correct? तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, and therefore this will be moved to the opposite side. This will start becoming high pressure line. इधर से oil आएगा. This will move in the opposite direction till it reaches midship. When it comes to midship, it stops. So this is following your order, and this is a follow-up system. So suppose आपने कोई सिग्नल दिया 10 डिग्री फोर्स का, हाँ जी. तो वो जो लिंकेज है पंप के साथ वो बाहर आया तो ऑयल जाएगा, ठीक है, ऑयल जाएगा तो रैम को घुमाएगा, लेकिन उस 10 डिग्री पे अगर मैं रखना है उसके बाद में कैसे वो हो रहा है कि वो स्ट्रेस प्लेट का एंगल कैसे चेंज हो रहा है? How to keep it on 10 degrees? Okay. Wheel आपके हाथ में है, आपने 10 degrees पे किया. So you want 10 degrees, so you will keep it on 10. जब आपने 10 पे रखा था, तो this had moved like this. यहाँ तक ठीक है. ये यहाँ से ऐसे हो गया, ये भी ठीक है. पंप स्ट्रोक लीवर यहाँ अंदर चला गया, यहाँ भी ठीक है. पंप ने ऑयल डिलीवर करना शुरू किया, तो यहाँ से ऑयल आया. This ram has started moving this way. Because of this moment, L3 has started moving backward. 10 चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रडर जाना शुरू कर देगा. जैसे ही जाना शुरू करता है, पंप स्ट्रोक लीवर बाहर आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, till it reaches a position where it comes back to original position. Therefore, pump stops delivering. Rudder has, this will happen only when the rudder has come to 10 degrees. अब जब rudder 10 पे आ गया, then pump is not delivering any oil because fast plate pump stroke lever original position में आ गया. Fast plate is in zero position, pitch is 0, but your wheel is on 10. Wheel is on 10, rudder is on 10. At this moment, what is happening to the system? Pump is running but not delivering oil. Therefore, with ram in new position, rudder at 10 degrees, it cannot move anywhere because this side and this side are not disconnected. Oil is non-compressive. Even if this ram tries to move any side, it cannot because pump pitch is 0. Therefore, this line and this line is isolated. So rudder remains at 10 unless and until you give another order. आप 10 से उसको 5 करो या mid shift करो, then only so it will follow again same way. Whatever angle you want. जो लीवर है पंप के पास वो ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है। वो जब ओरिजिनल पे आ गया तो वो होल्ड कर लगेगा। उसके बाद पंप, हाँ, वो होल्ड इसलिए कर पा रडर तो आ गया यहाँ, लेकिन अब ये 0 होने की वजह से ये दोनों लाइनें ब्लॉक हो गई, इसलिए अब ये रडर 10 पे रुका हुआ रहेगा. इट विल नॉट गो एनीवेयर. Is it clear? Anybody? Any doubt? Clear. Okay. Now let us see what happens here. Although we have shown it with a small symbolic diagram, but this is, as I said, is autopilot pump. ये कैसे काम कर रहा है? We will see. It is a very simple diagram. ये तो defunct है, यूज नहीं होता है. So this is my telemotor receiver, but I will show you with the एक और diagram है इसकी. कहाँ गई है? Where is that? All the way has been, so I have to search a little bit. ये तो इसके साथ एक और छोटी डायग्राम, हाँ ये है, दिस इज डायग्राम. ओके, नाउ दिस इज हाउ दैट telemotor receiver will work. For telemotor receiver to work, one pump is shown. There are two pumps. This is a small tank. Two pumps, autopilot pumps, one running, one standby. This is called the direction control valve. In short, DC valve we call it. But it is वो एक करंट वाली ऐसी DC नहीं है. This is direction control valve. This is a spool actually. एक spool होता है इसके अंदर. उसके ऑपरेशन से it moves towards left or right. तो इसके 3 ब्लॉक दिखा रखे हैं easy understanding के लिए. This is symbolic diagram. इसी से हम लोग ट्रेस भी करते हैं कहाँ फॉल्ट है. इन 3 पोजीशन का मतलब ये है. अच्छा, यहाँ पे सोलेनॉइड वाला है, एक यहाँ सोलेनॉइड वाला लगा हुआ है. So this type of valve is called 4x3 way valve. नाम इसका 4x3 का मतलब होता है 4 तो इसमें पैसेजेस हैं, 1 2 3 4 पोर्ट्स, 4 पोर्ट हैं और 4 होल लगे हुए पैसेज है. एंड
थ्री वे वाल्व मतलब 3 पोजीशन ये स्पूल वाल्व ले सकता है। एक तो नॉर्मल ये है जबकि कुछ नहीं हो रहा, दिस इज न्यूट्रल पोजीशन, और दूसरा अगर ये सॉलिनॉइड एनर्जाइज करेगा तो ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, स्पूल वाल्व मूव कर जाएगा। तो दिस कनेक्टेड टू दिस मींस ये वाला पोर्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर वे ये वाला सॉलिनॉइड एनर्जाइज होगा तो ये ब्लॉक यहाँ आ गया, स्पूल अंदर से मूव कर गया। अब क्या होगा, ऐसे, यानी यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। इसको पी बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं। पी इज प्रेशर पॉइंट और पोर्ट, और ये टैंक और रिटर्न, ये टैंक को जा रहा है, चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होता है, ब्रिज से आपने सिग्नल दिया पोर्ट का, तो उसमें क्या होगा, ये सॉलिनॉइड एनर्जाइज हुआ तो ये चीज यहाँ आ गई। जब तक कुछ नहीं दिया था सिग्नल, दोनों सॉलिनॉइड डी एनर्जाइज थे, पंप वाज रनिंग टैंक टू टैंक, यहाँ से ऑयल आया, इससे होके वापस आ गया, तो इट वाज आइडल रनिंग टैंक टू टैंक, डूइंग नथिंग। But the moment port is given, this valve will shift, and this port will be connected to this will be connected to this. Oil will travel from here, come here, enter here. Had we given starboard movement, opposite would have happened. ये वाला आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. Oil will come from the opposite side. यही हमें करना है इधर, है जी? लूप बना रहा है। लूप बना रहा है, या तो इस रिसीवर, दिस इज टेलीमीटर रिसीवर, ये टेलीमीटर रिसीवर है, इसको या तो इसने इधर को मूव कराना है या इधर, ये लिंकेज है जो जा रहा है मेरा पॉइंट ए ऑफ हंटिंग गियर, है ना। सो दिस इज हाउ दिस टेलीमीटर रिसीवर वर्क्स। दो हैं यहीं पे लगे हुए पंप, एक चल रहा है, दिस इज द वन व्हिच इज कंट्रोलिंग। सर ये जो सब सिस्टम टेलीमीटर रिसीवर के अंदर होता है, ये पूरा जो आप बता रहे हैं। टेलीमीटर रिसीवर के अंदर ऐसा है, जैसे स्टीयरिंग गेयर में आप जाओगे ना, तो ये ऐसे इतना ही है प्लेटफॉर्म छोटा सा, उसके बाद छोटा सा टैंक है, वो पंप छोटे छोटे से लगे होते हैं, कई बार नीचे भी होते हैं। ये तो हाँ, ये बाहर है, लेकिन ये जो टेलीमीटर जो आपने रिसीवर बना दिया, ये सब उसके अंदर होगा ना, ये सब तो नहीं पंप, ये तो पंप के साथ है वाल्व, लेकिन ये बाहर है, ठीक है। ये आउटसाइड है, इसके पास में ही होता है, बिल्कुल पंप के साथ ही लगा हुआ है। इसी के साथ सर अब ये मैं आप हंटिंग गियर इसी के साथ अटैच है। हंटिंग गियर को ये लिंकेज जा रहा है, ये कनेक्टेड है हंटिंग गियर। दिस इज कनेक्टेड और ये ये जो लिंकेज दिखा रखा है, दिस इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, जो हंटिंग गियर को, लीवर को ऐसे मूव करा रहा है, ऐसे मूव करा रहा है, ऐसे या ऐसे। L1 का मूवमेंट दिखाया ना, मैं ऐसे या ऐसे, ये लिंकेज मूव जो है ना ऑपरेट करता है। पोर्ट मूवमेंट देखते रैम भी पोर्ट पे जाएगा। हाँ, अब यहाँ रैम नहीं जाता, सिलेंडर जाता है, वो इसलिए क्योंकि हमने पिस्टन को फिक्स कर दिया। ये डायग्राम तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर है कि ऑयल या तो इधर आएगा या इधर आएगा, बेस्ड ऑन कौन सा सॉलिनॉइड एनर्जाइज हो, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये करता क्या है, ये कर रहा है, ये यहाँ पे अब पंप नहीं दिखा रखा हमने इस डायग्राम में, सिंपली रिसीवर को दिखा रहे हैं, दिस इज टेलीमीटर रिसीवर। तो जब सॉलिनॉइड एनर्जाइज हुआ तो अगर तो ऑयल यहाँ से आया, इधर आया, ये फिक्स्ड कॉलम है, इसके अंदर ये पिस्टन जो है, और ये है सिलेंडर हैज गॉट ए पार्टीशन हियर। तो जब ये ऑयल यहाँ से हाई प्रेशर आएगा, देयर इज ए पैसेज इनसाइड पिस्टन इज फिक्स्ड। तो जब यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ, ऑयल इधर तो जा नहीं सकता, बीच में पार्टीशन है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर बिल्डअप पिस्टन कैन नॉट आल्सो मूव, सो देयरफॉर दिस होल सिलेंडर मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। और सिलेंडर के आउटसाइड जो लिंकेज लगा हुआ है, जो हंटिंग गियर को जा रहा है, जैसे रिपीट करना पड़ेगा। हैं? रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, ओके। नाउ माय पंप यूनिट इज हियर। पंप में 2 सॉलिनॉइड वाल्व लगे हुए हैं डीसी वाल्व के ऊपर। तो ब्रिज से हमने या तो पोर्ट या स्टारबोर्ड, जो भी मूवमेंट दिया जाएगा, उस साइड का सॉलिनॉइड एनर्जाइज हो गया। जब सॉलिनॉइड एनर्जाइज हो गया तो डीसी वाल्व इज सप्लाइंग ऑयल फ्रॉम पंप। पहले टैंक टू टैंक जा रहा था, अब ये यहाँ से ऐसा आया, ये पाइप है, तो पाइपलाइन है, यहाँ से ऐसा आया, और ये पिस्टन है, पिस्टन इज ए सॉलिड पिस्टन जिसके अंदर होल है। सो ऑयल कैन पास थ्रू दिस एंड कम हियर। ये सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर। सो पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। अब पिस्टन और सिलेंडर में जो भी चीज़ फ्री होगी वो मूव करेगी। अगर पिस्टन फ्री होता तो पिस्टन मूव कर जाएगा, जैसे हमारी कार में या इसमें है, जब कंबस्शन होती है तो पिस्टन मूव करता है क्योंकि सिलेंडर फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ हमने पिस्टन को फिक्स कर रखा है, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होने से क्या होगा, दिस सिलेंडर, यहाँ प्रेशर बीच में पार्टीशन है, तो दिस होल थिंग विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। यस सर, नो? यस सर, यस सर, सिलेंडर हैज टू मूव, कोई और तरीका ही नहीं है।
तो जब ये लेफ्ट को जाएगा, इसके एक्सटर्नली सिलेंडर के बाहर मैंने लिंकेज लगा रखा है, सो दैट लिंकेज विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैंने स्टारबोर्ड मूवमेंट देना था तो मेरा डीसी वाल्व की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और इधर वाला ऑयल क्या होता है, ये टी को टैंक को जाएगा ऑयल इधर वाला। अब मैंने स्टारबोर्ड दिया तो ये हाई प्रेशर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ से ऑयल आएगा, इधर आएगा, it will come here and the cylinder will move towards right. Now this movement of the cylinder is resisted by a spring. ऊपर spring इसलिए दिया हुआ है ताकि jerky movement ना हो, smooth movement हो, इसीलिए दिया हुआ है। So this cylinder is the one which is actually moving. So is it clear working of this? Or based on this arrangement है ना, इस arrangement के हिसाब से ये चलता है। तो ये आपने सर अभी दिखाया था वो ऊपर का पार्ट है, वो टैली मोटर रैम्प वाला, ये पार्ट दिखाया मैंने ये आपको। पार्ट दिखाया। हाँ, ये यहाँ पे इसको सिंबॉलिक रखा है, नहीं तो सारा कंफ्यूजन हो जाएगा एक ही डायग्राम में करने में। अभी यहाँ से दिखाया कि ब्रिज से सिग्नल कैसे आया, अब एक्चुएटर मूव किया उसने। तो इसकी वजह से ये जो छोटा पंप है, इसे स्मॉल पंप है, ऐसे बन रहा है, इतना सा पंप है, उसके ये जो है इसको वाल को इधर या इधर बेस्ड ऑन पोर्ट मूवमेंट और स्टारबोर्ड मूवमेंट, उसके हिसाब से ऑयल या तो ऐसे जाके इधर आएगा या क्रॉस हो जाएगा, ये पोर्ट इससे कनेक्ट हो जाएगी तो इधर से जाएगा, इधर मूव करेगा। सो दिस इज हाउ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑयल इन द रिसीवर। दिस इज रिसीवर एक्चुअली, दिस इज रिसीवर एंड दिस रिसीवर इज द वन व्हिच वी हैव सीन हियर। दिस इज द रिसीवर, इसके नीचे पंप है। ये ट्रैवल स्टॉप्स क्या है सर? ये ट्रैवल स्टॉप्स, ये मूविंग सिलेंडर के साइड में जो लगा हुआ है, ये नीचे बॉटम वाला मूविंग सिलेंडर के साइड में वो एक ऐसा एरो सा बनाया है ना ट्रैवल स्टॉप्स के लिए। ये राइट हैंड साइड पे सर, हाँ ट्रैवल स्टॉप्स ऊपर वाला। Okay, yeah. These are the limits for the movement of the cylinder. और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है दिस मूवमेंट ऑफ द सिलेंडर इज प्रो एटा। ऐसे नहीं कि एक से दूसरे एंड पे चला जाए, ऐसा होगा तो हमारा कंट्रोल ही नहीं रहेगा कुछ। अगर मैंने 5 डिग्री मूवमेंट दिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिलेंडर शुड गो, and that is why in this diagram when we see, ये जो हमने डायग्राम लिया है, this moment is corresponding to 10 degree। 10 डिग्री आगे सोलर डिनर होना चाहिए ना। So we have again another feedback। आप फीडबैक की बात करो, कई फीडबैक होती है सिस्टम में, इट इज नॉट वन फीडबैक। नहीं, वो स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने बोला हंटिंग एयर इज ओनली द फीडबैक सिस्टम, पर इसके लिए मेरे को हंटिंग गियर इज नॉट ए नहीं, वो अब क्लियर हो गया। क्या हो गया भाई? तो ये टॉपिक ऐसे तो खत्म नहीं हुआ, बहुत है, काफी है। थोड़ा सा इसमें स्पीड अप भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर अप हुई हुई है। देखो ऐसा है, ये ठीक है, इफ यू जो आपको लगे कि भाई ये वाला क्लियर है, नहीं सर आपको नहीं, सबके नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्पीड अप कर लीजिए, किसको डाउट रहेगा तो पूछने के लिए। ये सारी कुछ चीज़ें कवर अप करी हुई है, जैसे ये वाला, ये 1 वाला, ये कवर मेन चीजें तो करनी पड़ेगी जब आप डिसाइड कर लो, मुझे कोई और इशू नहीं है। ड्राइंग के बारे में भाई सर आप मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्या आपको समझने के लिए और क्या एग्जाम के लिए। तो वो जो समझने के लिए समझ लो, एग्जाम के लिए आप कोई और तैयार कर लेना, बट अगर समझ के करोगे तो आसान होगा, और वैसे करोगे तो बाकी तो मैं आई कैन फिनिश इट मेबी वन लेक्चर लार्ज वेसल्स। लार्ज इज वेरी वेग टर्म। लार्ज वेसल्स सिस्टमैटिक स्टीयरिंग होती है। ऑल्सो टैंकर्स, गैस कैरियर्स, केमिकल टैंकर्स 10,000 ग्रॉस टनेज एंड अबव and other vessels 70,000 gross tonnage and above must have a safe-matic steering gear। इसमें क्वेश्चन आया कि और लार्ज वेसल। हाँ तो बता रहा हूँ ना, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो आपको safe-matic का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। safe-matic steering gear, safe-matic steering gear is a system whereby there is no need for anybody to take any action। The changeover from one system to second system happens automatically। Because in case of tankers and large vessels, अगर जैसे टैंकर का एक केस भी हुआ है जिसमें कि because somebody had to go, suppose लीकेज हो गया पाइपलाइन में, है ना, ऑयल लाइन में लीक हो गया, तो आपकी स्टीयरिंग तो स्टॉप वर्किंग,
तब क्या होगा, somebody has to go लीकेज के लिए उसको वाल शाल बंद करेगा, तब तक तो कोलिजन हो गया होगा। जैसे नो हो गया तो स्पिल हो जाएगा ऑयल, अगर इफ द इंटेग्रिटी इज ब्रोकन। तो वहाँ पे क्या है, दैट पार्ट शुड बी आइसोलेटेड ऑटोमेटिकली, सेकंड सिस्टम शुड कीप वर्किंग। दैट इज व्हाट इज लार्ज वेसल्स, है ना। बेसिकली सर ऑटोमेटिक सब इसमें से आइसोलेशन और रिलीफ को वगैरह हाँ, वो करेंगे ना, वही मैं बोल रहा हूँ, वी हैव टू डू, ये सारी चीज़ें आएंगी अभी। लेकिन इफ यू वांट सिलेक्टिव वन, जस्ट टेल मी विच ऑल थिंग्स यू वांट, देन आई विल ओनली डिस्कस दैट पार्ट। अगर आपको फास्ट करना है, नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं सर आप डिस्कस कर लो, कुछ टॉपिक्स हैं जो हो चुके हैं ना, वो थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। तो वो मुझे नहीं पता। I वो don't know. ये पम्प आइसोलेटिंग वॉल, रिलीफ वॉल, रिलीफ शॉक वॉल, ये हो गए डिस्कस। Okay. 4 रैम भी हमने एक बार डायग्राम हमने डिस्कस किया हुआ है, Okay. तो ये एक बार वापस करवा लीजिए, कुछ जरूरत नहीं किया तो, बट ये थोड़ा स्पीड अप करके हम लोग कर सकते हैं ताकि उतना टाइम नहीं लगे। Which one you want to speed up? मैं बता दूंगा सर जैसे जैसे टॉपिक नहीं ठीक है, you decide yourself सर first. थोड़ी हाँ? क्लासेस ज़्यादा ले लूँगी। नहीं नहीं, वो तो मैं ले लूँगा, ज़्यादा भी ले लूँगा, ऐसा कुछ I have no नहीं सर, problem. अगर आप इसी से Because most probably